So physical features of India, just the second, the physiography division of India is known as Northern Plain. Today, that discuss the Himalaya region area. But today, we have the new chapter, the Northern Plain. So look at the map. In the northern part of the Himalaya extend from the north to east, the Himalaya region area. And second part, northern plain lie in the south of the Himalaya, extend from 2,500 kilometers in length from east to west. East to west. The northern plain had been formed by the interplay, the three major river system. The three major river system, such as Indus plain, Ganga plain, and Brahmaputra plain. But you know, all the river basin is great work from the northern plain. So northern plain is located south of the Himalaya and north of the peninsular plateau. In between Himalaya, the folded mountain region area, and the plateau region area. The river basin, but all the rivers are origin in the snow cap covered in the northern part of Himalaya region area. So the river from the north to the west flow, name it the Indus, and second, the northern part of the Himalaya is known as Kasanpo, but if the eastern part of India, name the chain Brahmaputra, and third, the two-headed stream Ganga, like a Bhagirathi, है ना, and Alaknanda. So we can say that the formation of plain with the help of the three major river basin and its tributary to carry the huge mass of the silt, mud, clay with the help of the agent of gradation such as the running water and sprayed in the low-lying land. The low-lying land, so Himalaya to foothill, and foothill to Haridwar, and Haridwar to Bay of Bengal. So Haridwar to Bay of Bengal, just the flat surface land due to deposition of the huge mass of the silt, mud, and clay. Naturally, the plain region area are formed due to action of the running water.
जैसे ही फर्स्ट स्टेज की बात करो, सेकेंड स्टेज की बात करो और थर्ड स्टेज किसका, द रिवर बेसिन का। रिवर बेसिन का जो 3 स्टेज है, यूथ स्टेज, यूथ स्टेज में रिवर सिर्फ origin of place to foothill region area only work in erosional work and form a different type of the landform such as like a the V वैली गॉर्ज है, कैनियन एंड वाटरफॉल है। सेकेंड स्टेज में द इरोजन प्लस ट्रांसपोर्टेशन वर्क होता है जिसमें कि यू से वैली बनाता है, फ्लड प्लेट का है, मिएंडरिंग मिएंडरिंग का फॉर्म करता है। एंड थर्ड स्टेज में पेनी प्लेन प्लेन एंड फ्लड प्लेन एंड अनदर द लैंड फॉर्म लाइक ए ऑक्सबो लेक एंड फ्लड डेल्टा का फॉर्म करता है। बट द लो लेइंग लैंड कहता है कि डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द वास्ट बेसिन laying at the foothill of the Himalaya form the fertile plain. Fertile plain, it means the flat surface land and the rich in alluvial spread over the area of कितना 7 lakh the square kilometer, but the wing start about the 2400 kilometer long and with the 240 and 320 kilometers broad. So we know all human activities डेवलप इन द प्लेन रीजन एरिया। चाहे वर्ल्ड का किसी भी प्लेन एरिया में देखो, जो भी प्लेन रीजन एरिया का फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं पहले ही कल भी बताया कि रिसेंटली द 2 फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया इज रिसेंटली फॉर्म ड्यू टू 1 द इंटरनल वेरिएशन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड सेकेंड द डिपोजिशनल 1 द ग्रेट वॉल ऑफ नॉर्थ लाइक द हिमालय रीजन एरिया and second the plain region area, the northern plain। चाहे वो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन देखो, चाहे वो अमेरिका का यूएसए का मिसिसिपी एंड मिसोरी है, अमेजन बेसिन है, अफ्रीका का नाइल बेसिन है, जारे बेसिन है, कांगो बेसिन है। सो प्लेन रीजन एरिया इज द बेस्ट द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी। बट यू नो द ह्यूमन मेजर मेन ऑक्यूपेशन क्या है ह्यूमैनिटी का? सो एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के लिए प्लेन रीजन एरिया, उस प्लेन रीजन एरिया में बैंक ऑफ रिवर एरिया बेसिन या लो लेइंग लैंड एरिया इज द सुटेबल फॉर द रिच कल्टिवेशन ड्यू टू form the alluvial soil. Alluvial soil is the fine fertile loose particles of rock with mixture of the igneous and inorganic and organic matters. So alluvial, you know, the alluvial soil is soul of agriculture. Alluvial soil is the soul of agriculture. So Ganga basin, Indus basin and Brahmaputra basin is the vast area that extends from west to east. The Indus to Brahmaputra region area is more flat surface land. Variation है, the physical देखेंगे variation relief features in the northern plain है, but the flat surface area everywhere नहीं, the uneven है, uniform नहीं है, the variation है, but the generally the gentle slope due to the bank of the river to area fertile plain all human activity। और second factors क्या है कि northern plain is the densely populated area because all the factors are available here। all factors, चाहे वो factors आपका हो
प्लेन कैसा प्लेन है, फर्टाइल प्लेन है, सॉइल कैसा है, एलुवियल सॉइल है। दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, नियर द बैंक ऑफ रिवर है, चाहे वो रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। थर्ड क्या है कि फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन, तो जहां फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन रहेगा, जहां फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन रहेगा, फर्टाइल प्लेन है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। सेकेंड रीजन क्या है कि ये सारा रीजन जो है उस एरिया को काफी रिच प्लेस बनाता है और मोस्ट सुटेबल, द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड का यूज करते हैं, चाहे वो हम कंस्ट्रक्शन वर्क में करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल वर्क में करें, चाहे सेटलमेंट्स के लिए करें या एग्रीकल्चर के लिए। और यू नो द नॉर्दर्न प्लेन द हार्ट ऑफ इंडिया का हार्ट का होता है, और सबसे ज्यादा जो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो आपके लिए जो है किसके लिए है, द बेनिफिट्स जो है एग्रीकल्चर के लिए। तुमको पता है कि इंडिया इन एग्रीकल्चर कंट्री करते हैं, कृषि का देश करते हैं। यहाँ 80% पीपुल जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर नॉट ओनली द मेन रिवर बट ऑल्सो द स्मॉल रिवर, क्योंकि इसलिए कि जितने भी रिवर्स हैं, द पेरिनियल रिवर की बात करते हैं, हिमालय रिवर की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेजर 3 हिमालय रीजन जो है वो सारा रीजन रिवर का ओरिजिन जो है वो आपको द नॉर्थ द हिमालय द ग्लेशियर रीजन एरिया से है। जैसे ही ग्लेशियर एरिया से है तो रिवर अपने यूथ स्टेज में इरोजनल वर्क करता है, मेच्योरिटी स्टेज में वो ट्रांसपोर्टेशनल वर्क करता है, और द लास्ट स्टेज जो है ओल्ड स्टेज में रिवर जो है वो वर्क करता है डिपोजिशन, और लास्ट स्टेज जस्ट वो डिपेंड करता है द फ्लो ऑफ वाटर। द जेंटल स्लोप रीजन एरिया एंड जेंटल स्लोप एरिया इज द वास्ट द फ्लैट सरफेस लैंड, पेनी प्लेन लैंड एंड फ्लड लैंड एरिया is the suitable for all the human activity. Now the tributary, अब ये कहते हैं कि what is the meaning of the tributary? Define the term tributary. Tributary किसको कहते हैं? Tributary कहते हैं when the main river, अब कोई भी मेन रिवर्स ले लो, चाहे वो इंडस का ले लो, गंगा का ले लो, ब्रह्मपुत्र का ले लो या अदर रिवर ले लो। जैसे कहते हैं मेन रिवर, जब मेन रिवर अपने ओरिजिन प्लेस से और सोर्स ऑफ रिवर एंड माउथ ऑफ रिवर, जस्ट द साइकिल है, ये लाइफ साइकिल है रिवर का। तो सोर्स कहाँ है, तो सोर्स है हिमालयन रीजन एरिया। माउथ कहाँ है, तो ये वाटर बॉडी रीजन एरिया। अब इस अपने रास्ते से वो तो चलते हुए रास्ते में अगर कोई when the main river comes from the upward to downward and just the path area में the meet the small river in the different side, the small river जो डिफरेंट साइड मिलती है तो उसको लोग ट्रिब्यूटरी करते हैं। और जैसे कि मान लो ये नेपाल हिमालय से निकलती है ओरिजिन है, तो कोसी है, यहाँ घाघरा है, गंडक है, यमुना रिवर है जो आके गंगा मिलती है, शोर गंगा में आके मिलती है। ये इसलिए कहता है कि जो छोटी छोटी नदियां भी अपने द्वारा द सिल्ट मड क्ले को वो कैरी करते हुए आके यहाँ पर डिपोजिट करता है। यही कारण है कि नॉर्दर्न प्लेन, चाहे वो गंगा का प्लेन हो या ब्रह्मपुत्र का प्लेन हो या इंडस के प्लेन हो, ये प्लेन जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द डिपोजिशनल फॉर्मेशन है। डिपोजिशनल फॉर्मेशन सॉइल का फॉर्मेशन है, ये लैंड का। कौन सा लैंड है, तो प्लेन एरिया का जो फॉर्मेशन है ड्यू टू द डिपोजिशनल, किसके द्वारा, एजेंट क्या है, तो एजेंट आपका एजेंट है, वो एजेंट है रिवर है। रिवर का एजेंट, रिवर जैसे ही अपना वर्क करता है 3 स्टेज में वर्क करता है, तो हर स्टेज में रिवर अपना कुछ न कुछ नया लैंडफॉर्म तैयार करता है, चाहे वो हिमालय टू फुटहिल एरिया हो, फुटहिल एरिया टू हरिद्वार हो, और हरिद्वार टू बे ऑफ बंगाल हो। तो ये 3 स्टेज को हम लोग
डिवाइड किए हैं, क्लासिक 3 स्टेज में इसको बांटते हैं। तो एवरी स्टेज में रिवर जो एवरी स्टेज में अपना एक नया लैंडफॉर्म देता है, नेचुरल, नॉट दैट पे नेचुरल लैंडफॉर्म। और इन सबों में सबसे लोएस्ट लैंडफॉर्म जो है द लोअर लेयर ऑफ लैंडफॉर्म, जिसको हम लोग प्लेन कहते हैं, चाहे वो इंडस का प्लेन हो, चाहे वो गंगा का प्लेन हो, या ब्रह्मपुत्र का प्लेन हो। ये तीनों प्लेन आपके लिए इन ह्यूमन बीइंग के लिए वो काफी फेवरेट है। द डेंसली पॉपुलेटेड है, फिजियोग्राफी डिवीजन विद द रिच सॉइल है, कवर्ड कहाँ कर, एंड द combined with the educate वाटर का चूंकि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर है, वाटर भी आपको मिल रहा है, क्लाइमेटिकल कंडीशन भी बहुत अच्छा है। तो ये सब कारण से जो है ये रीजन एरिया जो है द नॉर्दर्न प्लेन का जो रीजन एरिया एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इंडिया। तो रिवर रिवर ये प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया का है। तो आप कहते हैं कि हाउ द रिवर बेसिन, हाउ द नॉर्दर्न प्लेन, कैसे नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो 3 इंटरप्ले देखते हो, कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन द फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम सच लाइक इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियों के द्वारा लाए गए हुए सिल्ट, मड, क्ले, ये सारे मिक्सचर के साथ वो नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म करता है, नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म करता है ना। और फिजो नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म करता है। नॉर्दर्न प्लेन इज द ग्रेट वेरिएशन। अब देखो कि नॉर्दर्न प्लेन जिस तरह से द हिमालयन मैंने ग्रेट रिलीफ फीचर देखे थे, ठीक उसी तरह से नॉर्दर्न प्लेन में भी, चाहे वो नॉर्थ टू वर्ड ईस्ट क्यों जा रहे हैं, घाघरा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जा रहे हैं, गंगा प्लेन एरिया है, तो इंडस एरिया है, वेस्ट टू ईस्ट का है, ओनली द 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 2500 किलोमीटर। तो ये रीजन एरिया जब वेरिएशन कहता है कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन भैया वेरिएशन देख लो ना, तो वेरिएशन रिलीफ फीचर्स ऑफ इन नॉर्दर्न प्लेन। जिस तरह से हिमालय का द रिलीफ फीचर देखे थे, द पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालय देखे थे, क्या क्या था पैरेलल रेंजेस, द 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट द डिमार्केटेड बाय द रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम के आधार से भी हिमालय को 4 भाग में बांटते हैं कि पहला पार्ट को कहते हैं द पंजाब हिमालय, दूसरा को कहते हैं कुमाऊं हिमालय, तीसरे को कहते हैं नेपाल हिमालय और चौथे को कहते हैं असम हिमालय। ठीक उसी तरह यहाँ भी वेरिएशन कहता है कि वेरिएशन द नॉर्दर्न प्लेन का वेरिएशन रिलीफ फीचर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। आपका पहला है, पहला क्या आपको देख रहे हो, पहला है कि ये पहला बेल्ट है, ये नंबर 1 द भावर बेल्ट, नंबर 2 तराई बेल्ट, नंबर 3 द बांगर बेल्ट और ये खादर बेल्ट। अब देखो कि बांगर और खादर ये दो देख लो, ये दो एरिया है, ये एलुवियल सॉइल का ही डिवीजन है, द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल सॉइल। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो ये दो रीजन एरिया है, और भांगर और खादर का जो रीजन एरिया देखते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन हैज द ग्रेट वेरिएशन in the relief features. The northern plain can be divided into the 4 regions. नंबर 1 है आपका भावर देख लो, नंबर 2 तराई है, नंबर 3 आपका बांगर है, नंबर 4 आपका खादर एरिया है। बट नॉर्दर्न प्लेन द रिवर आफ्टर द डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, जब माउंटेन से वो रिवर फ्लो कर रहा है तो फुटहिल एरिया, हिमालय रीजन एरिया, अपवार्ड हिमालय रीजन एरिया का सरफेस लैंड जो है वो अनडुलेटिंग लैंड है, ऊबर खाबर रज है। तो जहां पर वो अगर इरोड करता है तो पेबल, कंकर, स्टोन, स्मॉल पीस करता है, और डिपोजिट्स द वेयर द नैरो बेल्ट
अब जैसे सपोज करो कि ये मान लो कि 20 एक वैली बनाया, ठीक है, और आपका नॉर्दर्न प्लेन का ये हिमालय का स्टेटेड डाउनफॉल है, तो ये दोनों बीच का जो ये नैरो बेल्ट है, यहाँ पर आकर इस एरिया में आकर जो इरोजनल होता है, स्टोन होता है, ये आके यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है। ये जनरली आपको हिली रीजन एरिया में देखने को मिलता है। द नैरो बेल्ट अबाउट द 8 to 16 किलोमीटर विच लेइंग द पैरेलल ऑफ द स्लोप ऑफ द शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द भावर। ऑल द स्ट्रीम, धाराएं जो है, चाहे वो अलकनंदा हो, भागीरथी हो, या अदर धाराएं स्ट्रीम जो है, वो इस बेल्ट से कोलकाता इन द साउथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट स्ट्रीम, ये वहां से मूर्ति में जाता है स्ट्रीम के तहत। और द भास्ट प्लेन डाइवर्स इनटू द ट्रू, द भास्ट प्लेन आल्सो डाइवर्स द रिलीफ फीचर अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन है। आपका क्या वेरिएशन दिखा रहा है? आपका वेरिएशन दिखा रहा है भावर, दूसरा क्या दिखा रहा है? तराई, तीसरा क्या है? तो बांगर है, चौथा क्या है? तो खादर एरिया है। सो रिवर आफ्टर द डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन एंड डिपोजिट द पेबल्स इन द नैरो बेल्ट एरिया, नैरो बेल्ट एरिया, ये एरिया आपको जहां पर थिकली पॉपुलेटेड है, सॉरी, द फॉरेस्ट बेल्ट है, हिली रीजन है, जहां का स्लोप जो है वो जेंटिल स्लोप है। जेंटिल स्लोप के कारण फॉरेस्ट हैज बीन द क्लियर। आपके क्यों, हम लोग फॉरेस्ट को क्यों क्लियर करते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि सेक ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए वो थिकली फॉरेस्ट को हम लोग क्लियर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और इसलिए वो रीजन आपका काफी फर्टाइल लैंड होता है। ऑल द स्ट्रीम, दूसरा बेल्ट जो है आपका वो है सेकेंड बेल्ट, तराई रीजन एरिया की बात करते हैं। तराई कहाँ आपको मिलता है? वो भी फुटहिल रीजन एरिया की बात करते हैं। और its slope of the Shivalik and not the Bhavar, all the stream and the disappear in the Bhavar belt, south of the belt stream and river re-emerge and the create the wet, swampy and the marshy land. The region is also known as the Tarai. Tarai, and it was thickly forest region है, full wildlife है, forest have been the clear to create the agriculture land. Second, सेकेंड सेकेंड आपका देखेंगे, फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की चल आ रहे हैं, यहाँ की हिमालय, हिमालय टू फुट हिल एंड फुट हिल टू हरिद्वार एंड द हरिद्वार टू प्लेन। एक्चुअली यू नो द फ्लैट सरफेस लैंड का फॉर्मेशन जो देखे, कंसेप्ट जो हम लोग देख रहे हैं, वो द थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है। वो प्लेन रीजन एरिया, जिसको पेनी प्लेन भी कहते हैं, फ्लैट प्लेन भी कहते हैं, और वो काफी एरिया में फैला हुआ है, द प्लेन। सो ये फॉरेस्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, काटते हैं, लैंड बनाते हैं, और सेटलमेंट के लिए हाँ, जिनेट फ्रॉम द एरिया करते हैं। लोकेट, अब कहता है कि लोकेट द दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन मिलेगा। द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म, अब कहता है लार्ज पार्ट, जो नॉर्दर्न प्लेन का लार्ज पार्ट है वो फॉर्म होता है ड्यू टू द एलुवियल सॉइल। मैंने पहले ही कहा था कि द लोलैंड एरिया, बैंक ऑफ रिवर साइड एरिया, और बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फॉर्म करता है ड्यू टू आपका एलुवियल सॉइल। दो तरह के, कल भी मैंने बताया था कि एलुवियल सॉइल, सॉइल की दो पार्ट है, एक यंग सॉइल होता है, एक ओल्ड सॉइल होता है। तो जहां पर ओल्ड सॉइल, द मोस्ट द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, इसको क्रस्ट करते हैं, थिक लेयर
तो topmost soil remove from the agent of gradation। जैसे ही ये टॉपमोस्ट सॉइल जो है वो रिमूव करेगा, जैसे ये टॉपमोस्ट सॉइल अगर रिमूव करता है इस जगह से, ऊपर के पार्ट से हम देखें रिमूव करता है, तो नेचुरली ये रिमूव करता है कि सॉइल इरोजन हो रहा है, और यहाँ से रिमूव करते हुए आके ये यहाँ पर डिपोजिट है, तो ये आपका न्यू एलिमेंट सॉइल हो गया, और ये यहाँ पर ये ओल्ड एलिमेंट सॉइल है। तो किसके द्वारा, यहाँ पर भी एजेंट कौन सा एजेंट है, तो रनिंग वाटर है, एजेंट कौन सा है, रेन वाटर है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एलुवियल सॉइल को कहा भी गया है कि एलुवियल सॉइल इज द सोल ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इसलिए कहा गया है कि रिच फर्टाइल सॉइल है। और यहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज द फॉर्म बाय द ओल्ड एलुवियम it above the flood plain of the river and present the terrace like features and the known as the Vangar, and soil is the region contains the calcareous deposit located by the कंकर, जिसको हम लोग खादर कहते हैं, and the river the younger deposit foothill है ना, फ्लड प्लेन को कंकर करते हैं। और रिन्यू अबाउट द एवरी ईयर, कहता है कि ड्यू नो कि एवरी ईयर, ऐसा नहीं है कि चूंकि फ्लडेड रीजन एरिया में, अब हम लोग जैसे बिहार के हैं तो हम लोग देखेंगे कि वो रीजन जो एवरी ईयर जो है फ्लड प्लेन रहता है, तो वो नॉर्थ बिहार के रीजन है। किसके कारण, तो रिवर के, वो रिवर कौन सा रिवर है, तो कोशी रिवर। जब कोशी रिवर की एवरी ईयर आपके लैंड को वो डिस्ट्रॉय करता है, और हर साल एवरी ईयर जो है वो मोस्ट द अपर पार्ट ऑफ सॉइल का वो कैरी करते हुए जाके डिपोजिट कर देता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन का बताते हैं कि भाबर बेल्ट हो गया, खादर तराई बेल्ट हो गया, तीसरा बांगर बेल्ट हो गया, और चौथा आपका खादर बेल्ट जो है। तो खादर द न्यूली फॉर्म बेल्ट है, यंगर डिपोजिट है किसके द्वारा, द फ्लड प्लेन, तो फ्लड प्लेन के द्वारा, जिसको हम लोग कॉल्ड खादर करते हैं। और ये एवरी ईयर एंड जस्ट ऑलमोस्ट द ईयर एवरी ईयर, सो दे आर वेरी फर्टाइल एंड आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर and intensive agriculture. So northern plain lies in between the Great Wall of North and the peninsular plateau। इसके बीच का ये पोर्शन देखते हैं। अब देखो कि नॉर्दर्न प्लेन देख रहे हैं, इसका लोकेशन देख रहे हैं। लोकेशन क्या है, तो फुटहिल ऑफ हिमालय से साउथ में जैसे ही आते हैं ऑफ से हिमालय, तो एक्सटेंडिंग कितना एक्सटेंड है, तो 2500 इनका लेंथ देख रहे हैं। कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट, और ये लोकेटेड है इन बिटवीन ये पेनिनसुलर ओल्ड लैंडमार्क, इसको हम लोग कहते हैं प्लेट्यू एरिया, यंग लैंडमार्क जिसको हम लोग कहते हैं माउंटेन कहते हैं, कि ये रिसेंटली फॉर्म है, ये एंशिएंट टाइम से ही सबसे पुराना है। इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट देखते हैं जो वेस्ट टू ईस्ट की ओर एक्सटेंड किया है, इसमें थ्री बेसिन जो है वो गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और इंडस बेसिन, ये तीन बेसिन के द्वारा ये एक बहुत बड़ा लैंड को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग कहते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। अब इसके तीन भाग में कर देते हैं। अगर एक भाग आप दे देते हो तो ये प्लेन हो गया है जो इंडस के द्वारा फॉर्म हुआ है, इंडस एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी, इंडस है, सतलज है, रावी है, ब्यास, जो पंजाब हरियाणा रीजन एरिया को काफी फेवरेबल है फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आपका सेंटर में है जो दो धारा है, अलकनंदा भागीरथी, ये दो धारा आके मिलती है
कहाँ, देवप्रयाग में, और वहीं से लैंड का फॉर्मेशन, प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो गंगा प्लेन हुआ। गंगा प्लेन नॉट ओनली द मेन प्लेन बट इट्स द ट्रिब्यूटरी, चाहे वो घाघर हो, चाहे वो सोन हो, चाहे वो यमुना हो, कोशी हो, इनके द्वारा ये सारे जो स्मॉल रिवर अपने साथ लाए हुए सॉइल को वो डिपॉजिट करता है द लो लेइंग ऑफ लैंड, जहां पर लैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह यहाँ तिब्बत प्लेट्यू से एक ओरिजिन हो रहा है रिवर का, जिस रिवर को हम लोग तसानको कहते हैं। और जैसे ही नमचा बरुआ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मालयका, जो इंटर यू शेप में अरुणाचल प्रदेश में आता है, तो नाम ब्रह्मपुत्रा होता है। एंड ब्रह्मपुत्रा एंड इस ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी के द्वारा जो लैंड का फॉर्मेशन हुआ उसमें आसाम प्लेन, जिसको हम लोग कहते हैं। तो आसाम प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये तीनों प्लेन के द्वारा आपके नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। और दूसरा फॉर्मेशन, दूसरा आप देखते हो कि अब यहाँ तो ये देखिए, दूसरा देखते हैं कि नॉट ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का कहीं प्लेन फॉर्मेशन है, दूसरा आपका ये रीजन एरिया है जो जेंटिल स्लोप का रीजन एरिया है, इसको हम लोग ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, ईस्टर्न कोस्ट। और यहीं पर आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो डेल्टा का फॉर्म करता है। डेल्टा क्या है? द डेल्टा, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के रिवर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द और द माउथ ऑफ river and very fertile granular landmass and fertile landmass, तो डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा एंड कावेरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी एंड गोदावरी डेल्टा। सो ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न कोस्टल, ये आल्सो द रिच फॉर alluvial soil, depositional landform। तो जनरली द प्लेन एरिया का, जिसे हम लोग प्लेन की बात करते हैं, प्लेन चाहे वो गंगा का प्लेन हो, चाहे वो प्लेन इंडस का प्लेन हो, या प्लेन आपका ब्रह्मपुत्रा का प्लेन हो, या कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी का प्लेन एरिया है। प्लेन रीजन एरिया इज मोस्ट द सुटेबल द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटी। आपका जो बेसिक